Good morning, dear students. This is Manpreet Singh, and today we will discuss about our poem, A Lecture Upon Shadow, which is written by John Donne. And here I need to say you something about John Donne. Students, just listen that John Donne was born in 1572. This is the year when he was born. But if we are talking about the dates, then we can see somewhere 24th January, 22nd January, or 19 June. These are the dates about John Donne. But this is not confirmed that when he was born. I mean to say, on which exact day, on which exact date he born. So, but there is a confirmation of his death. 31st March 1631. 1631 he died. John Donne was a metaphysical poet. Metaphysical poet, it means a thing which is in the world but we cannot feel, we cannot touch. For example, if we are talking about this poem, here he described about a lecture upon shadow. I mean to say shadow. Shadow is the shadow is the metaphysical thing which he describes, and with this he compares something or something we will read in this poem. So, students, John Donne was in his time, he was a dean of St. Paul's Cathedral. Sorry, he was a dean of St. Paul. Okay, and he was born in Catholic family. But after that, when he got his sense, when he was able to think, he was able to decide about anything, he changed from the Catholic and he was become a dean of St. Paul's Cathedral. And next thing about his, he was a poet. I mean to say, John Donne was a poet. John Donne was a scholar. John Donne was a soldier, and John Donne had also worked as a secretary. Okay, so students, let's see the more discussion in your book. You can see, I will mark here, you can see here, John Donne was representative of the metaphysical poets. John Donne was a representative. वो क्या था? एक रिप्रेजेंटेटिव था. मतलब कि वो क्या करता था, एक लीडर था. किस चीज़ का, किसको एक्सप्लेन करने के लिए वो एक लीडर बना? वो था एक मेटाफिजिकल जो थीम है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जॉन डन आगे आए. ही वॉज अ रिप्रेजेंटेटर टू डिस्क्राइब about the metaphysical theme, metaphysical conditions, and later he set the metaphysical mode by vibrancy. So students, vibrancy we can say it means name or fame. मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे मतलब शोहरत से, पूरे जोश से, और आई कैन से वाइब्रेंसी, वाइब्रेंसी एज आई कॉल, या मैं कह सकता हूँ जो ये जो वर्ड है इसको मैं कह सकता हूँ वाइब्रेंसी को, गूंज जिसको बोलते हैं, इको, खूब शोरगुल. ठीक है, मतलब पूरे जोश के साथ उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया किसको, मेटाफिजिकल को. उसके बाद ऑफ लैंग्वेज एंड स्टार्टलिंग इमेजरी, और उन्होंने क्या किया, वाइब्रेंसी ऑफ लैंग्वेज एंड स्टार्टलिंग. देखो, स्टार्टलिंग का मतलब होता है सरप्राइज. ठीक है, और उन्होंने क्या कर दिया, सरप्राइज करना शुरू कर दिया किनको, उन लोगों को, एंड स्टार्टलिंग इमेजरी. और उन्होंने स्टार्टलिंग इमेजरी, देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्टलिंग इमेजरी क्रिएट कर दी. मतलब क्या कर दिया, एक ऐसी शेप क्रिएट करी. इमेजरी हम कह सकते हैं, इट मीन्स आवर imagination which relates with our imagination. Okay, and startling, it means a surprising thing he created in his time, and a preference for a diction, and he preferred some diction which is called modeled on direct utterances
So students, direct utterances, it means we can say direct speech. Okay. Diction model, they made some kind of diction, some kind of diction according to him, according to his language, and they described in the way of direct speech. He was brought up as a Roman Catholic. Later he converted in Anglican. Sorry, here the word is Anglicanism. And देखो Anglicanism का मतलब होता है कि वो पर्सन जो चर्च के अंदर ही रहकर अपनी मतलब लाइफ को स्पेंड करता है, वहाँ पे स्टडी करता है, ठीक है। उसके बाद है एंड वॉज डीन ऑफ सेंट पॉल्स चर्च टिल हिज डेथ। एंड आई टोल्ड यू दैट सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च, ओके, इट्स फुल नेम। So he became a dean of St. Paul's Church till his death। मतलब अपनी मौत तक वे क्या करते रहे, वे उस डीन की पोस्ट पर रहे। उसके बाद है the total effect of a metaphysical poem at its best is to startle। At that time when John Donne wrote on according to the metaphysical, then it was on the best, it means it is on the peak, it is to startle the reader, and it made them surprise the reader into seeing and knowing what he has not really noticed or thought about before। और वो किस तरह का सरप्राइज था, into seeing and knowing what he has not really noticed, कि उन्होंने क्या नहीं ध्यान दिया, और thought about before, और क्या या फिर क्या about before, या फिर क्या इससे पहले उन्होंने कभी सोचा। Like all Donne's poetry, this poem too reflects and emphasis on the intellect and wit। Intellect and wit, it is your सेंस वी कैन से, या फिर मैं कह सकता हूँ आपकी बुद्धिमानी, आपकी समझ, हैज़ अगेंस्ट फीलिंग एंड इमोशन। देखो जॉन डन की जो पोइट्री होती थी वो क्या करती थी, एम्फोसिस, वो प्रेशराइज करती थी, वो फोकस करती थी किस पर, इंटेलेक्चुअलिटी पर और तुम्हारी विट पावर पर, एज अगेंस्ट फीलिंग एंड इमोशन। और उन वर्ड्स के अंदर जो जॉन डन डिस्क्राइब करते थे, उनके अंदर क्या नहीं होता था, उनके अंदर फीलिंग्स और इमोशन के अगेंस्ट होता था क्या, इंटेलेक्चुअलिटी और विट पावर। सो लेट्स स्टार्ट हाउ पोइम। मैं पोइम शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ याद करवा दूं, ये पोइम जॉन डन ने अपनी वाइफ के साथ चलते हुए लिखी है। मतलब जब वो अपनी वाइफ के साथ चल रहे थे, जैसे हाल ही में उनकी शादी हुई, तो वो दोनों वॉक पर निकले हैं। वॉक पर निकलने के साथ साथ जॉन डन के माइंड के अंदर क्या चला वो देखो क्या था। स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी। स्टैंड स्टिल, अभी तक क्या रुके हुए हैं, खड़े हुए हैं, एंड आई विल रीड टू दी। यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान दें, दी जो है, ये वाला जो दी है, सॉरी मैं इसको सही कर दूँ, जो ये दी है, इस दी का मतलब यू के सेंस में है। क्या कह रहा है, स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी। रुके रहो, एक जगह खड़ो, क्या करूं, आई विल रीड टू दी, ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ रीड करूं। अ लेक्चर, एक लेक्चर लव, इन लव्स फिलोसॉफी, एक लेक्चर जिसका टॉपिक उन्होंने क्या चूज़ किया, लव। बट किस तरह का लव, इन लव्स फिलोसॉफी, यानी कि जो जिसके अंदर लव को कंप्लीट डिस्क्राइब किया गया हो। दीज 3 hours दैट वी हैव स्पेंट, और वो क्या कह रहे हैं, ये जो 3 घंटे वी हैव स्पेंट, जो हमने स्पेंड किए, वॉकिंग हेयर टू शैडोज वेंट। कहाँ पर, यहाँ पर चलते हुए, टू शैडोज वेंट, और हमारे चलते चलते क्या हुआ, 2 परछाइयाँ भी गई। अलॉन्ग विद अस, हमारे साथ, विच वी आर सेल्व्स प्रोड्यूस्ड। अब वो शैडोज़ कौन सी थी जो हमारे साथ चल रही थी, कौन सी शैडोज़ थी, वो शैडोज़ थी जिनको हम ही ने क्या किया था, प्रोड्यूस किया था, मतलब कि उनको बनाया था। बट नाउ, पर अब, द सन इज़ जस्ट अबव आवर हेड। अब क्या है, अब जो सूरज है वो हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर है। वी डू दस
विडो दो शेडोज ट्रेड, वी, फिर से देखें इसे, यहाँ पर बोल रहे हैं विडो दो शेडोज ट्रेड। सो स्टूडेंट्स, डो का मतलब, हालांकि वैसे तो अपने इसको एक मतलब जैसे जो फीमेल डियर होती है या हिरनी जिसको बोल सकता हूँ, ठीक है, उसके लिए बोल सकते हैं। पर यहाँ पर डो का मतलब क्या है, विडो, हम क्या है, हम सोर्स ऑफ द एनर्जी, मतलब हम वो सोर्स हैं जिससे वो शेडोज क्रिएट हुई हैं। विदो दो शेडोज, हमने क्या किया, हम ही वो हैं जिन्होंने उन शेडोज को क्या किया, क्रिएट किया। यहाँ पे ट्रेड का मतलब तो रास्ता बनाना होता है, मतलब क्रिएट द वे, कि हम ही ने क्या किया, उन शेडोज को क्रिएट किया, मतलब हमारी बॉडी से ही क्या वो शेडोज क्रिएट हुई। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल, सॉरी, एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, एंड टू ब्रेव, देखो ब्रेव होता है बहादुरी, क्लियरनेस क्लियरली, ऑल थिंग्स जितनी भी चीज़ें थी आर रिड्यूस्ड, मतलब हमने क्या किया, हमारी जो सोर्स था, हमने उस हमारे सोर्स से, मतलब हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर था उससे हमने शेडोज क्रिएट की। और उन शेडोज पर जब हमने कॉन्सेंट्रेट किया तो हमने क्या कर दिया, सब चीज़ पर ध्यान देना बंद कर दिया। सो वाइलेस्ट और आवर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो। सो वाइलेस्ट यानी इस दौरान, मतलब जब हम साथ थे, जब हमने उन शेडोज़ को क्रिएट किया। और इन्फेंट लव, मतलब मैंने आपको अभी कहा कि उन्होंने ये पोइम कब लिखी, अभी हाल ही में उनकी शादी हुई है। अब उन्होंने अपनी शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ चलते हुए उस पोइम को लिखा, तो वो क्या बोल रहे हैं, सो वाइलेस्ट आवर इन्फेंट लव, मतलब अभी उनके जो लव लाइफ है, उनकी जो मैरिड लाइफ है उसकी स्टार्टिंग है, तो वो बोलते हैं इन्फेंट। देखो इन्फेंट का मतलब वैसे तो नवजात शिशु, जो छोटा बच्चा पैदा होता है उसके लिए बोला जाता है इन्फेंट वर्ड, पर यहाँ पर इन्फेंट लव का मतलब होता है स्टार्टिंग, जो हमारा टाइम है अभी लव का, डिड ग्रो, वो भी क्या हुआ, बढ़ा, डिस्गाइज डिड, एंड शेडोज फ्लो, डिस्गाइज डिड एंड शेडोज फ्लो। डिस्गाइज, देखो डिस्गाइज का मतलब होता है कि हमने क्या कर लेना, हमने अपना आकार बदल लेना, भेष बदल लेना। Disguise did and shadows flow from us and our cares, but now it's not so. अब देखो जब उन्होंने ध्यान दिया क्या हुआ, डिस्गाइज डिड, क्या हुआ, रूप बदला, एंड शेडोज फ्लो फ्रॉम अस। यहाँ पर रूप बदलने से मतलब है कि जब जो सन था वो जब अपनी प्लेस को चेंज कर रहा था, तब क्या हुआ, डिस्गाइज डिड, तो रूप बदला, एंड शेडोज, और जो शेडोज थी फ्लो फ्रॉम अस, वो हमसे क्या हुई, दूर हो गई। एंड आवर केयर्स, हमारी जो केयर्स हैं, बट नाउ इट्स नॉट सो, पर अब ऐसा नहीं है। क्यों, मतलब पहले कैसा था, पहले हमें हमारी शेडोज दिख रही थी, नज़दीक थी, अब हमारी शेडोज कहाँ दिख रही है, दूरी पर। ओके, अब देखो क्या है, दैट लव, देखो यहाँ पे HATH लिखा हुआ है, HATH, यहाँ पर हैज़ है, ध्यान रखना, हैज़ नॉट मैंने लिखा हुआ है सामने, ध्यान दें, नॉट अटेंड द हाईएस्ट डिग्री, दैट लव हैज़ नॉट अटेंड। पर देखो अब क्या है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो हमारा रिश्ता है, अभी तक उसने क्या नहीं किया, अभी तक उसने अपनी पीक तक नहीं पहुंचा, मतलब हमने अभी तक उस लव लाइफ को एंजॉय नहीं किया। फिर आगे है, दैट लव हैज़ नॉट अटेंड द हाईएस्ट डिग्री विच इज स्टिल diligent lest others see। तो अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं, यहाँ पर वो बोल रहे हैं विच स्टिल, जो अभी तक क्या है, डिलिजेंट, डिलिजेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं जो अभी तक क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, लेस्ट अदर सी, मतलब औरों के बजाय जो हमारी लव लाइफ है वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग है। आगे वो कह रहे हैं एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे, सिवाय कब, आवर लव्स यानी हमारा जो प्रेम है, एट दिस नून स्टे मतलब दोपहर के वक्त। दोपहर में क्या होता है, सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, हमारी जो शेडोज होती हैं बिल्कुल हमारे शरीर के पास होती हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं सिर्फ दोपहर के बजाय हमारा जो प्रेम, हमारा जो स्नेह, हमारा जो अफेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रगल करता है। आगे है, वी शैल न्यू शेडोज मेक द अदर वे, तो अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे किसको, न्यू शेडोज को, एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड। जैसे कि क्या था, पहले जो शेडोज क्रिएट हुई थी टू ब्लाइंड, मतलब वो हमें दिख नहीं रही थी, हम जिस वे में चल रहे थे सूरज हमारे सामने था और शेडोज पीछे क्रिएट हो रही थी, तो
हमारा वो क्या था, वो एक ब्लाइंड लव था एक तरीके का, मतलब हमारे साथ तो था पर हम उसको पहचान नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे। अदर्स दीज विच कम बिहाइंड, और क्या थे, दीज विच, ये वो थी कम बिहाइंड जो पीछे पीछे आ रही थी, विल वर्क अपॉन आवर सेल्व्स, अब क्या करेंगे, विच वर्क बिहाइंड विल वर्क, और वे हमारे पीछे पीछे क्या कर रहे हैं, करेंगे या काम करेंगे, आवर सेल्व्स, हमारे लिए, ठीक है, एंड ब्लाइंड आवर आइज इफ आवर लव्स फेंट। देखो, ब्लाइंड आवर आइज कह रहे हैं कि जब सूरज हमारे सामने था, हमारी शेडोज पीछे थी, तो क्या हो रहा था, कम बिहाइंड विल वर्क अपॉन आवर सेल्व्स, वे अपने आप ही क्या कर रही थी, अपने तालमेल को, अपने अफेक्शन को, अपने लव को क्रिएट कर रही थी, एंड ब्लाइंड आवर आइज, और हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इफ़ आवर लव्स फेंट, अगर हमारा जो प्रेम है वो फेंट हो, मतलब डल हो जाए, फीका पड़ जाए, या फिर मैं बोलूँ र्यून हो जाए, एंड वेस्टवर्डली डिक्लाइन, और वो कह रहे हैं कि अगर हमारा जो लव है वो र्यून हो जाए, कम हो जाए, या फिर जो फेंट हो जाए, एंड वेस्टवर्डली डिक्लाइन, और पश्चिमी दिशा की ओर क्या हो, डिक्लाइन, मतलब हमारा जो अफेक्शन है हमारा वो कम हो जाए। फिर आगे कह रहे हैं, टू मी, मेरे लिए, दो फॉल्सली थिंक, अब मेरे लिए वो जो चीज़ें हैं वो क्या है, दोज जो थिंग्स होंगी, यानी जो हमारी जो लव लाइफ की स्टार्टिंग, हमारे जो शेडोज़ हैं, या फिर उस शेडोज़ की दूरी जब हमें होती हुई दिखाई देती है, तो क्या होता है, वो मेरे लिए क्या एक फॉल्स थिंग हो जाएगी। एंड आई टू दी, और मैं तुम्हारे लिए, दी माइन एक्शंस, जो मेरे काम हैं, मेरे कर्तव्य हैं, शल डिस्गाइज, मैं उनको क्या कर लूँगा, मैं उनको एक शेप दे दूँगा, मैं उनका एक रूप बदल दूँगा। द मॉर्निंग शेडोज वर अवे बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, द मॉर्निंग शेडोज वर अवे, जो सुबह की जो परछाइयाँ होती है वर अवे, वे दूर थी, बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, पर ये भी लंबे समय तक क्या है, पूरा दिन साथ होंगी। बट ओ लव्स डे इज शॉर्ट, पर प्रेम का जो दिन होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इफ लव डे के, इफ सॉरी इसमें ध्यान दे, इफ लव, यहाँ पर बोल रहे हैं, ध्यान दे, बट ओ लव्स डे इज शॉर्ट, पर प्रेम का वो जो समय होता है बहुत कम होता है। इफ लव्स डे के, अगर प्यार क्या हो, प्यार सड़ने का मतलब है कि जैसे बहुत ज़्यादा समय स्पेंड कर लिया तो एक ही चीज़ से इंसान बोर हो जाता है, ये एक ह्यूमन नेचर है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर हमारा लव जो थोड़ा हो, थोड़ा दिखे, तो उसका मतलब क्या है कि हमारा जो लव है वो कम हो रहा है, ठीक है। आगे ध्यान दें, लव इज़ अ ग्रोइंग और फुल कांस्टेंट लाइट, अब जो मेरा प्रेम है तुम्हारे लिए वो ग्रोइंग, बढ़ रहा है, और फुल कांस्टेंट, और लगातार, मतलब एक जो तेज रोशनी उसकी तरह, मतलब जैसे रोशनी धीरे धीरे तेज होती रहती है वैसे ही। एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज नाइट, और ये कैसे चल रहा है, एंड ये फर्स्ट मिनट, ये पहले क्षण, यानी मैं कह सकता हूँ फर्स्ट मोमेंट, मिनट की जगह मैं मोमेंट वर्ड यूज़ करूँ तो गलत नहीं है। एंड हिज फर्स्ट मिनट, और उसका जो पहला जो क्षण होता है आफ्टरनून, और दोपहर के बाद, और इज नाइट, और जो रात में है, मेरा लव, मेरा अफेक्शन वो लगातार क्या होता है, ग्रो करता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।